اور اب بات کریں گے کراچی میں چند گھنٹوں کی بارش نے ضلع انتظامیہ کے تمام دعووں کی کلائی کھول دی ہے۔ شہر کے مختلف علاقے اربن فلڈنگ کی لپیٹ میں آ گیا اور نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ بارش انتظامیہ کی کارکردگی پر بڑا سوال نشان چھوڑ گئی۔ اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے ملک آفتاب سے۔ جی ملک آفتاب، کراچی کی کیا صورتحال ہے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ دیکھیں، اس وقت موجود ہوں جامعہ گلاس جو روڈ ہے مجنار روڈ سے منسل، اور یہاں پر ٹریفک کی بدترین جو ہے وہ سب جام ہے، اور پوری علاقے میں جو ہے وہ پانی پھیلا ہوا ہے۔ موٹر سائیکل سوار جو ہیں وہ سب سے زیادہ اس کے شکار ہو رہے ہیں، جو حفاظت سے گھر آ رہے ہیں، اور اسکولوں کو جو بچے ہیں وہ گھر نہیں پہنچ پائے ہیں۔ شہری کافی پریشانی کا شکار ہیں، اور بہت بڑا ایک ٹریفک جام ہے۔ آئیے چندی گڑھ روڈ، صادق روڈ، اس کے طرف ایک طرف پانی جمع ہے سڑکوں پر، اور دوسری جانب ٹریفک کے جام ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ شہری دوری عذاب سے مبتلا ہیں۔ اور یہ بارش اللہ کی رحمت تھی، لیکن اس وقت لگ رہا ہے کہ اللہ کی زحمت بن کر جو ہے وہ شہر میں آئی ہے۔ اور دوسری جانب جو نالے ہیں ان کی اطلاعات بھی کوئی اتنی تسلی بخش نہیں ہے۔ مختلف علاقوں میں جو ہے وہ صورتحال بڑی سنگین ہے، اور سراری جو ریلا ہے وہ کراچی کی جو مختلف کچی آبادیاں ہیں جیسے مچھر کالونی ہے، مندی کالونی ہے، سرجانی، خدا کی کراچی، نیو کراچی، وہاں پر جو ہے وہ پانی گھروں میں داخل ہو چکا ہے، اور بڑی بدترین سے صورتحال ہے۔ جی ملک آفتاب، بتائیے گا سندھ حکومت کی جانب سے اس وقت کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، حکومت کی جانب سے میئر کراچی ویسٹرن مذہب آپ نے نالوں کی صفائی کا کام تو شروع کیا ہوا تھا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نالوں کی صفائی کے دوران جو ہے اتنا آسان نہیں ہے، اور بہت سی ایسی تجاویزات ہیں، تعمیرات ہیں جو نالوں پر تعمیر کی گئی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پانی کی نکاسی میں کافی مشکلات ہوتی ہیں، اور جب تعمیرات کا آپریشن ہوتا ہے تو ایک عوامی رد عمل سامنے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک نالوں کی صورتحال بھی کوئی اتنی تسلی بخش نہیں ہے۔ دوسری جانب جگہ جگہ جو ہے وہ گٹر ابل ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹریفک بھی جام ہے، اور ہر طرف جو ہے وہ پانی پھیلا ہوا ہے، اور شدید تاب کا شکار ہے۔ ملک آفتاب، صبح سے جو سلسلہ چل رہا تھا تیز بارش کا، تو یہ اب تھوڑا تھم گیا ہے، تو کیا آپ نے کسی سندھ حکومت کے نمائندوں کو سڑکوں پر کام کرتے ہوئے یا اقدامات کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ دیکھیں، اس میں مواقعاتی واٹر کارپوریشن کا جو عملہ ہے وہ اپنی ایسی مشینری کے ساتھ شہر فیصل پر موجود ہے، اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ پانی جو ہے وہ نکالا جائے، لیکن پانی کی رفتار اتنی تیز ہے، اتنا شدید طریقے سے جو ہے وہ اب پانی امڑ آیا ہے سڑکوں پر، یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی وہ مشینری کی وجہ سے مشینری لگائیں گے اور فوراً سڑکیں صاف ہو جائیں گی۔ یہ تو کہنا انتہائی جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا، اور بہت ہی مشکل ہوگا، لیکن یہ کہ بہرحال وہ کوششیں کر رہے ہیں، اور یہاں پر جو ہے سٹی گورنمنٹ کا معاملہ ہے وہ بھی موجود ہے، لیکن صورتحال جو ہے وہ کافی گمبھیر ہے۔ جی ملک آفتاب ہمارے ساتھ موجود رہے گا، ہمیں بدیعالزماں نے بھی جوائن کیا ہے، کچھ تفصیلات ہم ان سے بھی لیں گے۔ بدیعالزماں، بتائیے گا کہ کراچی شہر کی جو ایک اہم شاہراہ ہے شاہراہ فیصل، اس پر کیا اس وقت آپ احوال دیکھ رہے ہیں؟ ٹریفک کا کیا نظام ہے، اور پانی کتنا جمع ہوا ہے سڑک پر؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے شاہراہ فیصل کی بات کی، مصروف ترین شاہراہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، یہاں پر ہے تمام کاروباری جو علاقے ہیں اسی سڑک سے گزر کے لوگ جاتے ہیں، خاص طور پر بڑے بڑے جو مارکیٹیں اس طرف ہیں، تو یہاں پر جب بھی کیونکہ جب بارش شروع ہوئی ہے تو بارش شروع ہونے کے بعد لوگوں نے یہ کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے گھر پہنچا جائے یا دفاتر سے گھر پہنچا جائے، اسی وجہ سے وہ ٹریفک جب ایک ساتھ نکلتی ہے تو بہت ٹریفک جام ہو جاتی ہے، اور سڑکوں پہ جب پانی ہو تو اس وقت شاہراہ فیصل پہ بہت زیادہ پانی ہے۔ اس کو پانی کو نکالنے کی کوشش کیسے کی جائے گی، کیسے ہوگا، کیونکہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے اس کے لیے ایک مشینری کی ضرورت ہوتی ہے، وہ مشینری ہیوی مشینری جب آئے گی، اور اگر مشینری آ بھی جاتی ہے تو کیسے پانی نکالے گی؟ اصل میں جو نالے ہیں وہ نالے بھی بھرے ہوئے ہیں، اگر آپ سڑکوں سے پانی نکالتے ہیں تو نالوں پہ جاتے ہیں، اور نالوں کا پانی اوور فلو ہونے کے بعد جو ہے سڑکوں پر آ چکا ہے۔ یہ تو میں شاہراہ فیصل کی بتا رہا ہوں، اس وقت بھی ناظم آباد میں تیز بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے، ناظم آباد میں تیز بارش ہو رہی ہے، نیو کراچی میں تیز بارش ہو رہی ہے، جو جتنی بھی تمام جو سڑکیں ہیں جن پر سے لوگ اب ظاہر ہے ان کی چھٹی کا وقت ہے، وہ اپنے گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت شدید ترین ٹریفک جو ہے نا ہر سڑک پر جام ہے۔ خاص طور پر میں بتاؤں کہ جو ایم اے جناح روڈ ہے وہاں سے لے کر اب لسبلا کی طرف آئیں، یہاں سے ناظم آباد کی طرف آئیں، نیو کراچی کی طرف جائیں، تو تمام ہی سڑکیں اس وقت تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ اور پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جو نارتھ ناظم آباد کا جو خاص طور پر کیڑی چورنگی ہے اس کے اوپر جب پہاڑی کی طرف سے پانی آتا ہے تو ٹھیک پورا ہے پانی بدیعالزماں، جو آپ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود رہے گا، ہم آپ سے تفصیلات لیتے رہیں گے۔ اس وقت ہمیں بیورو چیف کراچی امتیاز فرحان نے بھی جوائن کیا ہے، کچھ سوالات ہم ان سے کریں گے۔ امتیاز فرحان، بتائیے گا کہ سندھ حکومت کی جانب سے کیا احکامات کیے گئے ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج پھر ایک مرتبہ نہ صرف سندھ گورنمنٹ نہیں، ہم صرف سندھ گورنمنٹ کا رونا روتے ہیں،
ना तो सिंध गवर्नमेंट, ना बल्दियाती इदारों, ना मुखैर इदारों, ना खुद शहरियों ने अपने लिए कोई बंदोबस्त किया है। कई अरसे से हम ये बात बार बार कह रहे हैं कि नागन चौरंगी, 5 स्टार चौरंगी, केडीए चौरंगी, नर्सरी, शारा फैसल, गुलिस्तान जौहर, कम से कम 50 से 52 मकामात हैं। वहां पर जो माजी का कुओं का एक सिस्टम है, डमलोटी यहाँ पे चलाता है, शारा फैसल पे डमलोटी के कुएं हैं, उनकी एक पूरी सीरीज है जो लियारी नदी से टुवर्ड्स समंदर की तरफ जाती है और फिर अगर हम आएंगे तो मलीर नदी की तरफ आती है। इस शहर के अंदर जहां लाखों इस कराची शहर के सीने में छेद हुए हैं पानी के हुसूल के लिए जो ड्रिल किया गया है, उसके मुकाबले में कम से कम हजारों की तादाद में कुओं की जरूरत है। इसके लिए सरकारी इदारों को भी काम करना पड़ेगा, मुखैर इदारों को भी काम करना पड़ेगा, लोगों को खुद काम करना पड़ेगा, तमाम मसाजिद की तंजीमों को, इलाके की तंजीमों को, कि शहर के अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर, आज जितनी बारिश हुई है शहर में पानी की वजह से पूरा शहर रुक गया है। अगर ये कुओं का सिस्टम बहाल कर दिया जाए या कायम कर दिया जाए, एक तो पानी नहीं रुकेगा इस शहर के अंदर और शहर के अंडरग्राउंड वाटर जो है वो तेजी से ऊपर आएगा। हमने गलियां पक्की किए हुए हैं, हमने बार्स को इस तरह किया हुआ है कि पानी सख्त नहीं होता इस शहर के अंदर, वो सीधा समंदर की तरफ बढ़ता है और समंदर में आगे जाके सेवरेज का पूरा निजाम डिस्टर्ब हो जाता है। उसको सेवरेज के निजाम को बचाने के लिए खुदारा वजीर आला साहब से भी अपील है, मेयर मुर्तजा वहाब से भी, और जितने सरकारी इदारे, सैलानी के बशीर फारूक साहब से, आलमगीर वालों से, अल खिदमत वालों से और अवाम से भी अपील है कि वो जो पानी के हुसूल के लिए जो ड्रिल करवाते हैं उसकी जगह ये कुओं का सिस्टम लाएं और जहां जहां पानी जमा होता है वहां पानी का सिस्टम उन कुओं के जरिए जो माजी में आज से 100 साल पहले था उसको बहाल करें। ये जब तक ऐसा नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता, इस वक्त पूरा शहर डूबा हुआ है। अभी एक्सक्यूज हो जाएगा कि जनाब इतनी बारिश आई हम क्या करते हैं, ये हम हर साल में 2 मरतबा ये रोना रोते हैं और इसके अलावा हमारा कुछ नहीं होता। हुकूमत की भी ये होती है, हमने बहुत सफाई की। एक रोज पहले वजीर आला की सदारत में एक इजलास हुआ है, उसमें वजीर आला ने बरहमी का इजहार किया कि जनाब नाले भरे में गटर का साहब उन्होंने इत्मीनान का इजहार नहीं किया था, तो वजीर आला सिर्फ इत्मीनान का इजहार नहीं करेंगे, सस्पेंड करना चाहिए, सस्पेंड क्या टर्मिनेट करना चाहिए। इस शहर के जब तक सिंध गवर्नमेंट के और ये बल्दिया उस्मा के इंजीनियर्स को टर्मिनेट नहीं किया जाएगा मसला हल नहीं होगा। वो सिर्फ अपने मेयर के साथ निकल आते हैं विजिट के ऊपर, कोई वजीर के साथ निकल आता है विजिट के ऊपर, उंगलियां उठा के जो है वो मुआयने करा रहे होते हैं। और भाई मुआयना हर साल कराते हो आप, पैसे हर साल लेते हो आप, अरबों रुपए नाले की सफाई में होते हैं, अरबों रुपए शहर में कचरे की सफाई में होते हैं, फिर भी कचरा गटर के अंदर मिलता है, फिर भी कचरा नाले के अंदर मिलता है। तो ये इंजीनियर्स के ऊपर रखना पड़ेगा, सियासतदानों से में निकले, सियासतदानों को हमें सिर्फ फोर्स करना पड़ेगा कि इन इंजीनियर्स के ब्यूरोक्रेट्स को घर भेजें, बिल्कुल घर भेजें और इनके खिलाफ एफआईआर भी होनी चाहिए। मैं जज्बात में बात नहीं कर रहा, आज पूरा शहर जिस तरह से हुआ है, लोग फंसे हुए हैं, घरों पे नहीं जा पा रहे, बच्चों की जो छुट्टियां हुई हैं स्कूल से, कॉलेजों से बच्चियों की छुट्टियां हुई हैं, कोई बेचारे घर पे नहीं जा रहे, घर पे वालिदैन परेशान है। लाइट के इलेक्ट्रिक बादशाह है, उसकी मर्जी जो चाहे करे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। शायद पाकिस्तान में बहुत पावरफुल शख्सियत जो इस वक्त हमारी है ना, उनसे कहीं ज्यादा के इलेक्ट्रिक पावरफुल है। उसका एक सीईओ है कि जो मर्जी आए कर देते हैं, गिरा देते हैं, कहते हैं जी बिजली से बचाने के लिए हमने, करंट से बचाने के लिए ऐसा किया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मलिक आफ्ताब, बदी, हमारे और यासिर वगैरह हमारे न्यूज 1 के नुमाइंदे मौजूद हैं, पूरे शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बता रहे हैं। लेकिन इसके लिए हुकूमत को चाहिए ये बारिश का रोना नहीं रोए और इन सबको बैठ के इस मसले का हल निकालना पड़ेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ फरहान, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। हम कुछ मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मलिक आफ्ताब भी मौजूद हैं। मलिक आफ्ताब, बताइएगा कि कराची के इलाकों में इस वक्त लोड शेडिंग की भी फराहमी मअतल है, इस हवाले से बताइएगा कि किन इलाकों में अब तक लोड शेडिंग की बहाली नहीं हो सकी। कराची में अगर देखा मजबूरी तौर पर हम देखें तो तकरीबन जो है वो 70% इलाके में जो है वो बिजली नहीं है। खासतौर जो शहर की खास बदाबादी आबादी हैं या और सिटी एरिया के इलाका है, वहाँ तो बिल्कुल जो है वो बिजली नहीं। इसकी वजह ये भी है कि यहाँ पर जो है वो पुरानी इमारतें हैं, पुरानी इमारतों के साथ जो बिजली का निज़ाम है वो इंतहाई नाक़िस है और जब भी बारिश होती है तो वहाँ पर करंट लगने के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रिक तर्जमान का यही कहना है कि हम जो है वो
जब भी बारिश होती है तो हम जो है वो कोशिश करते हैं कि सिलसिला मुनक़ित कर दिया जाए ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। तो जब तक ये बारिश और बूंदाबांदी रहेगी उस वक्त तक जो है ये बिजली का जो है मतलब बहाली जो है वो बहाल होना इंतहाई मुश्किल है। ठीक है, हमारे साथ बदियुज़्ज़मा भी मौजूद हैं, उनसे कुछ ट्रैफिक की सूरत हाल जानेंगे। बदियुज़्ज़मा, बताइएगा कि शहर की सड़कों पर ट्रैफिक की बहाली हुई है या ट्रैफिक के वही मामलात हैं जो सुबह से हम देख रहे हैं? देखिए, कोई ट्रैफिक की बहाली नहीं हुई है। असल में जब ट्रैफिक पुलिस एहलकार होंगे या कोई होगा तो इन ट्रैफिक को निकालेगा। वो भी क्या कर सकते हैं, असल में जब सड़कों पर पानी जमा होगा तो कोई कुछ भी नहीं यहाँ कर सकता। यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि केडीए, 5 स्टार और नागन चुरंगी में इतना पानी है कि एक शख्स अगर वहाँ खड़ा हो तो वो पूरा का पूरा उस पानी में डूब जाएगा, इतना पानी है। तो कैसे ट्रैफिक की रवानी जो है वो जो सही हो सकती है? इस वक्त बुरी तरह मुतासिर है। मैंने आपको इलाके गिनवाए थे कि यहाँ पर जितने भी सड़कें हैं, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि लोग अपने दफातर से घर की तरफ जा रहे होते हैं, तो उस वक्त जो है शहर कायद की जितनी भी सड़कें हैं जिनका भी मैं जिक्र करूं, और खास तौर पर इस वक्त जो मुतासिर है बहुत ज्यादा मलीर का इलाका है। मलीर के एक इलाके में मैं बताऊं कि दोनों तरफ की जो सड़क है उस पर जो आम शाहरा है उस पर इतना पानी है कि गाड़ियां वहां पर तैरती भी आपको नजर आ रही होंगी। और खास तौर पर ये जितना भी साइड एरिया है जिसमें शेरशाह के इलाका है, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा पानी जमा है। यहाँ पर पूरी ट्रैफिक जाम है। फिर नाजमाबाद में ट्रैफिक जाम है। फिर उसके अलावा गोलीमार, लियाकताबाद और करीमाबाद, यहाँ पर बुरी तरह जो है वो ट्रैफिक जाम है। और लियाकताबाद का मैंने पहले आपको बताया कि वहाँ सड़क भी बैठ गई है, जिसकी वजह से और भी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो 2-2, 3-3 घंटे से लोग जो हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं। कोई अपनी गाड़ी को धक्का लगाकर आगे ले आ रहा है, कुछ लोग जो हैं वो बारिश में जो है वो साइड पे खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि कब बारिश थमे और वो अपने घरों को निकले। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बाइक वाले अगर जा भी रहे होते हैं, वो फुटपाथ पर चलने के बाद जो है वो जा रहे होते हैं, वो अपने लिए अपने खतरा उनकी जान के लिए भी हो जाता है। तो पानी जो बाइक है वो समझ ले कि अगर आप सड़कों पे लेके जाएंगे तो बाइक तो पूरी डूब जानी है, उसने बंद ही हो जाना है। तो इस वक्त शदीद तरीन जो ट्रैफिक है वो जाम है पूरे शहर में। मैं एक इलाका नहीं गिनवा रहा, मैं सारे शहर की बात कर रहा हूँ, चाहे वो सदर का इलाका हो, मलीर का लानी कुरंगी का इलाका हो, रंगी टाउन का इलाका हो। ठीक है, बदियुज़्ज़मा हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मलिक आफ्ताब से कुछ जानेंगे। मलिक आफ्ताब, बताइएगा कि कराची की मखदूश इमारतों की क्या सूरत हाल है इस वक्त बारिश के बाद? देखिए, मखदूश इमारतों की हम बात करें तो अभी भी इतला आई है कि सदर टाउन के इलाके में कुछ छज्जे वगैरह जो गिरे हैं, और खालिदर का जो इलाका है वहाँ पर तकरीबन 103 इमारतों को मखदूश करार दिया गया था। और जब भी बारिश होती है तो लाजमी ऐसे वाक़यात होते हैं। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानब से एक फितरी तौर पर एक नोटिस जारी कर दिया जाता है और वो अपनी बरी जमा हो जाते हैं अपने काम से। और उन्हें खाली करवाने के वजह से ना तो कोई DC मुखलिस नजर आते हैं, या जब खुदा न खास्ता कोई बड़ा वाक़या होता है उस वक्त जो है ज़िले इदारे हरकत में आते हैं। इस वक्त बड़ी सूरत हाल काफ़ी कशीदा है। जो खालिदार का इलाका है, रंटरोड लेन, रामसामी, या इसके अलावा जो है ओल्ड सिटी जो एरिया है, खरदार, मीठादार, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमारतें जो हैं वो मखदूश हैं और वहाँ से टुकड़े जो हैं वो कितने की इतलात भी मकबूल हो रही हैं। ठीक है मलिक आफ्ताब, मॉनसून के ताकतवर सिस्टम के ज़ेर असर कराची में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी था। इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे यासिर सलीम, बदियुज़्ज़मा और मलिक आफ्ताब। आपका बहुत शुक्रिया।